کیوں ہو رہا ہے؟ آخر یہ پوری دنیا کے حالات بڑی تیزی سے تبدیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اور ہمارے حالات قرآن رکھنے کے باوجود، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے باوجود، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق کا دعویٰ کرنے کے باوجود، ہم آج اضطراب کی وادیوں سے گزر رہے ہیں، جبکہ ہمارے ہی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کہا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا گئے۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ، آج کے لوگوں کے پاس حضور کو یاد کرنے کا ٹائم بھی نہیں۔ اتنا مصروف انسان ہو گیا کہ صبح کیسے ہوتی ہے، شام کیسے ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کل تک اگر کسی انسان سے کہا جاتا کہ قرآن پڑھو تو وہ انسان کہتا تھا کہ ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، دکان سے تھک کر کے آتا ہوں، سو جاتا ہوں۔ آج اتنا ٹائم ہو گیا کہ 8 گھنٹے واٹس ایپ پر خرچ کرتا ہے، اس کے لیے ٹائم ملتا ہے۔ اگر جملہ اجازت دیں تو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، سب کے میسج پڑھنے کا ٹائم ہے، اللہ کا میسج پڑھنے کا ٹائم۔ اللہ کہاں جا رہی ہے ہماری قوم؟ کس سمت ہماری قوم کے اقدام بڑھ رہے ہیں؟ وہ قوم جو دنیا کو راستہ دکھانے کے لیے آئی تھی، وہ قوم آج راستہ تلاش کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ وہ قوم جو قوموں کی امامت کے لیے آئی تھی، آج ایک امام تلاش کر رہی ہے کہ ہماری قوم کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے۔ ایسی سچویشن، ایسے حالات۔ بس میں چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بہت تفصیلی خطاب کرنے کا عادی نہیں، اس لیے کہ میرے پاس نہ اتنا مواد ہوتا ہے، نہ اتنا علم رکھتا ہوں، لیکن جتنی دیر بھی میں کچھ باتیں عرض کروں گا اسے آپ سمجھیں اور اسے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ذکر، یاد کرو۔ بہت سارے انسانوں سے جب کہا جاتا ہے میاں نماز پڑھو، حضرت ٹائم نہیں، معاذ اللہ۔ جس قوم کے پاس رزق دینے والے رب کے لیے ٹائم نہ ہو، وہ قوم زمین کے اوپر بے سر و سامانی کی زندگی نہیں گزارے گی تو اور کیا گزارے گی؟ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرا چرچا کروں، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے ثواب سے مالا مال کروں، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے نعمتوں سے مالا مال کروں، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھ پر انعام و اکرام کی بارشیں نازل کروں، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے قدم قدم پر سکون کی دولت سے مالا مال کروں، تو میرے بندے تجھے کچھ نہیں کرنا، بس مجھے یاد کیا کر۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے یاد کر، میں تجھے نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا۔ تو میرا ذکر کر، میں قدم قدم پر تیری مدد کروں گا۔ تو میرے ذکر میں اپنی زبان کو تر کر دے، پھر تو دیکھنا تیری زندگی خوشیوں سے میں بھر دیا کروں گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا ذکر یہ کتنی عظیم دولت ہے، اللہ کی یاد یہ کتنی عظیم دولت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی آپ نے قرآن کے انداز کو محسوس کیا؟
कुरान के अंदाज़े गुफ्तगू को महसूस किया, कुरान की तिलावत करते हुए इन आयतों की तिलावत तो हजार हा मर्तबा आपने की होगी, लेकिन उसकी गहराई में जाने की कभी आपने कोशिश की? अल्लाह अकबर। रब इरशाद फरमाता है, मेरा जिक्र करूं मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। आइए हम रहमत आलम, नूर मुजस्सम, फख्र आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की तरफ अपनी तवज्जो को मबजूल करें, जिन्हें परवरदिगार ने हमारे लिए आइडियल बना करके भेजा, नमूना बना करके भेजा, और हमें भेजने के बाद, हमारे दरमियान भेजने के बाद उसने एहसान भी जताया और फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। ऐसी अज़मत वाले रसूल को जब रब ने हमारे दरमियान मबऊस फरमाया, तो हम जरा हुजूर से पूछते हैं, आका आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं? अल्लाह को कितना याद करते हैं? इसलिए कि हमको तो दाढ़ी आपकी सुन्नत है तो ये हमें याद है, मिसवाक आपकी सुन्नत है ये हमें याद है, खाना किस तरीके से बैठकर खाना चाहिए ये सुन्नत हमें याद है, सुरमा लगाना चाहिए ये सुन्नत हमें याद है। लेकिन हुजूर हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप ये तो बताइए कि गारे सौर के अंदर दुश्मन जब दहाने पर मौजूद थे तो किस चीज ने आपको सुकून की दौलत से मालामाल किया था कि आप बेखौफ नजर आ रहे हैं और फरमा रहे हैं, ला ताज़न इन्नल्लाह माअना। अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी चीज है आपके पास जिसकी बुनियाद पर ये यकीन आपके अंदर पैदा हुआ? रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हदीस मुबारका में मिलता है, यज़कुरुल्लाह फी कुल्ली हीन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपने रब का जिक्र किया करते थे। आप जरा अंदाजा लगाएं, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के जिक्र से अपनी ज़बान को तर रखते और अपनी उम्मत को भी तालीम अता फरमाई। सुबह उठो तो पहले कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहि नुशूर। रात को जब सोया करो अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़ा करो। रात को जब सोया करो सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास पढ़ करके सोया करो। बल्कि फरमाया गया, जो शख्स सूरह काफिरून रोजाना रात को पढ़े अल्लाह उसे शिर्क से महफूज रखेगा, वो कभी मुशरिक नहीं हो सकता। आप अंदाजा तो लगाएं, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात सो रहे हैं अल्लाह का जिक्र करके, सुबह उठ रहे हैं अल्लाह का जिक्र करके, घर से बाहर निकलते हैं तो फरमाया गया, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर बायां कदम घर से बाहर निकालो। अल्लाहु अकबर। अगर कोई शख्स रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ करके सोता है तो अल्लाह सिर्फ उसके घर की हिफाजत नहीं फरमाता, बल्कि उसके घर से करीब के 40 घरों की हिफाजत फरमाता है। अल्लाह का जिक्र सोते वक्त करो, अल्लाह का जिक्र उठ करके करो, अल्लाह का जिक्र बाजार में करो, अल्लाह का जिक्र खाने से पहले करो, अल्लाह का जिक्र खाने के बाद करो। अल्लाह अकबर। पीने से, पानी पीने से पहले अल्लाह का जिक्र करो, पानी पीने के बाद अल्लाह का जिक्र करो, छींक आए तो अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह अकबर। कोई लम्हा तुम्हारे अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होना चाहिए और गफलत में नहीं गुजरना चाहिए। लेकिन हमारा हाल ये है, अल्लाह अल्लाह, हमारे पास अल्लाह के जिक्र का टाइम नहीं है, अल्लाह के जिक्र का वक्त नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब का जिक्र कुरान ये नहीं कहता बस बहुत मुख्तसर जिक्र करो, नहीं, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ऐ ईमान वालों, अल्लाह का जिक्र करो और कसरत से जिक्र करो, यहां तक कि तुम्हें कसरत जिक्र में देखकर दुनिया तुम्हें दीवाना कह उठे कि ये अल्लाह की मोहब्बत में दीवाना हो चुका। वाह। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद। आज कभी आपने सोचा, माँ घर में मौजूद, बाप घर में मौजूद, शौहर घर में मौजूद, बीवी घर में मौजूद, मदरसे में उस्ताद मौजूद, स्कूल में टीचर मौजूद, फिर भी गुनाह बच्चे कर रहे हैं।
बल्कि अभी कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट हाउस के अंदर कोई गंदी पिक्चर देखते हुए एमपी नजर आ गया, पकड़ा गया। आप जरा सोचो, ये आखिर तबीयत गुनाह की तरफ माइल कैसे हो रही है? ये आज का इंसान गुनाह के दलदल में डूब कैसे रहा है? कौन सी गलती उससे हो रही है कि गुनाह के दरवाजे पर दस्तक ही नहीं दे रहा, गुनाह के दलदल में डूब रहा है? ए अल्लाह, मैं गुनाह से बचना चाहता हूं, मुझे कोई नुस्खा अता फरमा। मैं कल ही की बात बताऊं, जब मैं हैदराबाद की सरजमीन पर पहुंचा तो मेरे साथियों ने मुझसे कहा कि हजरत, हमने स्टूडेंट्स का एक काफिला बुलाया था। 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे, 15, 16 और 17 साल की उम्र के स्टूडेंट्स, तलबा। जब उनसे हम लोगों ने गुफ्तगू शुरू की तो पता चला हर नौजवान, यानी 80% नए नौजवान बुराई के दलदल में डूबे हुए। रोजाना रात को यूट्यूब पर गंदी पिक्चरें देखकर अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। आपने कभी महसूस किया, कभी आपने गौर किया कि इस बुराई के दलदल में इंसान डूब कैसे रहा है? कल तक जिन गुनाहों को करने में इंसान शर्म महसूस करता था, आज बेबाकी के साथ उन गुनाहों के अंदर डूबता जा रहा है। क्या वजह है उसकी? क्या सबब है उसका? सुनो, अच्छी तरीके से ज़हन के अंदर महफूज कर लो। जब कोई बंदा अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है तो अल्लाह उस पर शैतान को मुसल्लत कर देता है और फिर वो शैतान उसको उन रास्तों पर ले जाता है जिस रास्ते पर चलने के बाद उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती है। वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतान, ये कुरान का फरमान है। अगर मां ये चाहती है कि बच्ची गुनाहों के दलदल में जाने से बच जाए, अगर बाप ये चाहता है कि गुनाहों के दलदल में डूबने से मेरा बच्चा बच जाए, तो उसको अल्लाह के जिक्र का आदी बना दो, अल्लाह की याद का आदी बना दो। और आज एक और सबसे बड़ी परेशानी हो गई, जिंदगी तंग नजर आ रही है, दिल घबरा रहा है, अच्छा नहीं लगता, घुटन सी महसूस होती है, सब कुछ है, घुटन, दिल में बेचैनी, बेकरारी, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी तंग हो चुकी हो। कुछ लोग हैं जिनकी रोजी भी तंग है, कुछ लोग हैं जिनका घर भी तंग है, कुछ लोग हैं जिनका दिल भी तंग है, कुछ लोग हैं जिनकी जिंदगानी भी तंग है। मैंने जब कुरान को पढ़ने की कोशिश की कि अल्लाह, इतनी बड़ी कायनात और कायनात की वसाअतों के बावजूद मेरे मौला इंसान की जिंदगी इतनी तंग कैसे हो गई, जरा ये तो बता। तो मेरा रब फरमाता है, वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो मेरे जिक्र से गफलत इख्तियार करे मैं उसकी जिंदगी को तंग कर देता हूं। अल्लाह की याद से गफलत बरतने वाले की जिंदगानी को अल्लाह तंग कर देता है, उसकी रोजी तंग, उसकी उम्र तंग, उसका घर तंग, उसकी जिंदगी तंग। और बाद मुफस्सिरीन तो यहां तक फरमाते हैं कि अल्लाह उसकी कब्र को भी तंग कर दिया करता है। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। आज नई नई स्कीम आ रही है,
نئے نئے پلان آ رہے ہیں، نئے نئے منصوبے آ رہے ہیں. 1 کا 10، 10 کا 100، 100 کا 1 کروڑ کیسے بنی؟ جلدی